So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, verse number 8. So what's happening abhi ho kya raha hai? Krishna is trying to leave Hastinapur. Krishna is trying to leave for Dwarka for 3 months. वो बेचारे जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना. सो वी आर स्टार्टिंग ऑन दैट नोट कि अभी क्या चल रहा है. कि लास्ट वर्ड्स में भगवान बोले कि चलो मैं जाता हूँ. 2 महीने रुक चुके हैं ऑलरेडी उन्होंने. फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला प्रभु महाराज प्लीज रुक जाओ. फिर वो और रुक गए. मतलब 2-3 महीने रुक गए. मतलब हमारे साथ क्या होता है, कोई बोलता है तो हम लोग 5 मिनट रुक जाते हैं. प्रभु क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम है, लेकिन भगवान भगवान है, उनके पास कोई काम नहीं है. ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीवन, सो ही कैन इजीली स्टे. 2-3 महीने तो ऐसे ही रुक गए वो, है ना. सो नाउ इन 1.10.8 वी विल सी कि अब वापस 2-3 महीने के बाद वापस वो उनसे परमिशन मांग रहे हैं जाने की, है ना. लेट्स स्टार्ट. आमन्त्रय चाभ्यनुज्ञातः परि परिष्वा परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरु आरुरोह रथम आरुरोह कथम कैश्चेत् परिवक्तो बिभादितः. Afterwards, when the Lord asked permission to depart and the king gave it, the Lord offered his respects to Maharaj Yudhishthira by bowing down at his feet, and the king embraced him. After this, the Lord, being embraced by others and receiving their obeisances, got into his chariot. Anybody wants to read the purport? I can read, I will Prabhuji. read, Prabhuji. Yeah. पढ़ो Prabhuji, Lalit मैं Prabhu, you can read. Yeah. Thank you, Prabhuji. Maharaj Yudhishthir was the elder cousin of Lord Krishna, and therefore, while departing from him, the Lord bowed down at the king's feet. The king embraced him as a younger brother, although the king knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. The Lord takes pleasure when some of his devotees accept him as less important in terms of love. No one is greater than or equal to the Lord, but he takes pleasure in being treated as younger than his devotees. These are all transcendental pastimes of the Lord. The impersonalist cannot enter into the supernatural roles played by the devotee of the Lord. Thereafter, Bhim and Arjun embraced the Lord because they were of the same age, but Nakul and Sahadev bowed down before the Lord because they were younger than him. Mm. Beautiful. So, so what's happening is Krishna is trying. इतने महीने हो गया, 2-3 महीने हो गए. Like this is incredible. 2-3 महीने हो गए, वो बेचारे जा ही नहीं पा रहे हैं. Every time he wants to go to somebody says no no please रुक जाओ. पहले कुंती महारानी ने रोक लिया, उसके बाद वो डिपार्चर था उनका भीष्म देव का, तब रुक गए. फिर यहाँ पर उन्होंने 2-3 महीने रोक लिया. अब उनको जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है ना. So it is very hard for us. Not some of us maybe understand, but मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था समझना कि यार why is this. कृष्णा इज ए सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड, ही डजंट नीड एनीबॉडीज परमिशन. क्यों रुके हुए हैं वो इतने टाइम से, है ना. सो वी विल डिस्कस दैट एस्पेक्ट ऑफ व्हाई, है ना. सो आई वाज लिसनिंग टू सम वन ऑफ द प्रभुपाद्स थिंग, ही सेड कुछ स्टूडेंट्स आए उनको, आई थिंक इट वाज इन एलए, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उनसे कुछ स्टूडेंट्स आए, वो पूछ रहे थे. उन्होंने, अब शिला प्रभुपाद क्या होता है, वेन एवर ही गिव्स एन आंसर ना, he gives a very different answers to different people based on the actual audience, है ना. So these young students, they asked him, Srila Prabhupada, this was the question, है ना. Srila Prabhupada, do you think his divine, they called him his divine grace, do you think uh, uh, no, so the is human birth there to realize God, ये क्वेश्चन था उनका, ठीक है. तो शिला प्रभुपाद ने बोला दिस इज द ओनली पर्पस, दिस इज द ओनली गोल, द ह्यूमन बर्थ इज ओनली फॉर गॉड रियलाइजेशन. तो उन्होंने पूछा वापस उनके जो स्टूडेंट्स है उन्होंने पूछा हैव यू रियलाइज्ड गॉड. इमेजिन इमेजिन हिज डिवाइन ग्रेस बैठे हैं, उनको पूछा हैव यू रियलाइज्ड गॉड. तो अब यूजुअली आंसर क्या हो सकता है, यस और नो. अगर यस है तो उनको पता है, अगर मैंने बोला यस तो वो फिर 10 क्वेश्चन और पूछेंगे, और मैंने पूछा नो तो फिर वो 10 क्वेश्चन और पूछेंगे. शिला प्रभुपाद सेड टू हिम, टू देम, उन्होंने बोला व्हाट डू यू थिंक. लाइक व्हाट. ही सेड टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन, हैव आई रियलाइज्ड गॉड और नॉट. बोला वी डोंट नो, है ना, हाउ डू वी नो. उन्होंने बोला कि तो शिला प्रभुपाद ने बोला इफ यू डोंट नो देन आई कैन टेल यू वट एवर.
You would not know anyway. You are asking me for a question that you have no understanding of. Then I can tell you anything, you have no idea. It's like going to a doctor. डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं ना, डॉक्टर को हम लोगों ने बोला कि डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर ने बोला यू तो आपको लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया है, तो हैव नो आइडिया व्हाट डज दैट मीन, है ना? तो क्यों क्यों जो डॉक्टर डॉक्टर को बोलेगा तो समझ में आएगा, एक डॉक्टर बिल्कुल गांव वालों को किसी को बोलेगा तो उसको क्या समझ में आएगा, है ना? तो डॉक्टर तो कुछ भी बोल देगा उनको, बोले कुछ भी बोल दिए, ये लो दवाई, और आजकल यही हो रहा है ना? शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि हाउ वुड यू नो, है ना? फिर शिला प्रभुपाद बोलने लगे ना, ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू हिम, दैट कि how would you know if I'm speaking a truth? And then he said, for example, अपने डिवोटी के बारे में बताया, if I give this devotee सोने, gold, and say, go and try and sell this gold. You can go and give it to पान वाले को दोगे तो पान वाला उसका वो बना लेगा, मतलब सब्जी वाला ना उसका वो बना लेगा, क्या बोलते हैं, पेपर, सॉरी, वेट बना देगा, वेइंग मशीन में लगा देगा उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं इसकी क्या वैल्यू है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड रियलाइजेशन, है ना? तो फिर फिर वो डिवोटी ने पूछा कि अच्छा टेल अस व्हाट इज गॉड रियलाइजेशन, है ना? सो जैसे ही उन्होंने पूछा, शिला प्रभुपाद ने बोला नाउ यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, हाँ, सो दैट मीन्स यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट गॉड रियलाइजेशन इज, है ना? However, I am going to answer you this, but remember, unless you are not prepared to learn, you should not even ask a question. अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, you should be prepared and open to listen to me at least. You can argue with me, but don't ask question just for the sake of it. You should be able to listen to what I'm gonna say. Be open to it. है ना? देन तो एंड तो फिर उसके बाद वो जो बच्चे थे, उन्होंने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूछा, अच्छा प्रभुपाद टेल अस हैव यू सीन गॉड? तो प्रभुपाद ने बोला, ये आई सी गॉड एवरी मोमेंट, आई एक्चुअली सी गॉड ऑन एवरी मोमेंट. फिर उन्होंने वापस उनको बोला कि आई एम टेलिंग यू दिस, बट अनलेस एंड अनटिल यू सरेंडर, you will not understand anything that I say. Knowledge cannot even start transferring until unless you surrender. You're asking all this question. अब यही क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन डिवोटीज ने भी पूछे हैं उनसे. शिला प्रभुपाद के बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आंसर्स है, बिकॉज दिस ऑडियंस वाज लाइक दैट, सो शिला प्रभुपाद यूज दैट. फिर उसके बाद देन दे वर टॉकिंग, दे वर वेरी फ्रेंडली, शिला प्रभुपाद वाज वेरी फ्रेंडली एज वेल. देन दे सेड, ओके प्रभुपाद टेल अस, इज मेडिटेशन a way to know God? शिला प्रभुपाद ने बोला, यस इट इज वन ऑफ द वेज, बट इट इज नॉट फॉर कलयुगा, है ना? कलयुगा फॉर रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यू कैनॉट जस्ट यूज मेडिटेशन टू रियलाइज गॉड, है ना? यू कांट, इसमें है ही नहीं, इट्स नॉट फॉर दिस थिंग, बट इट इज वन ऑफ दिस, है ना? फिर फिर उन्होंने ये बोला कि बट इन ऑर्डर फॉर यू टू मेडिटेट, यू नीड टू नो कि किस पे मेडिटेट करना है मुझे, है ना? व्हाट डू आई नीड टू मेडिटेट ऑन? इफ यू डोंट नो गॉड, एंड गॉड रियलाइजेशन कैन ओनली कम व्हेन यू एक्चुअली मेडिटेट ऑन द लॉर्ड. बट इफ यू डोंट नो हु गॉड इज, देन हाउ हु वुड यू मेडिटेट ऑन? फिर शिला प्रभुपाद ने, फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद कोटेड दिस वर्स, जो आई एम नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन, आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन, सॉरी. शिला प्रभुपाद कोटेड दिस वर्स 7.1, मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, नाउ हियर ओ सन ऑफ प्रथा, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, नॉट फुल कॉन्शियसनेस ऑफ एयर और एनीथिंग लाइक दैट, फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, with mind attached to me, you can know me in full. So there are some meditation where you look at and concentrate on a flame, है ना? That is not actually recommended for realization of God. That is recommended for you to अपना थोड़ा सा mental capacity बढ़ाने के लिए, to get some siddhis, it's okay. But to realize God, what do you need to practice on? Yoga in full consciousness of me. With mind attached to me, you can know me fuller. And then he actually quoted another verse, this one. Man mana bhav mad bhakto madhya jimam namaskuru mam evashyasi satyam te mam evashyasi युक्तव्यम आत्मानम मत परायणः. क्या बोल रहे हैं? माम evashyasi युक्तव्यम, एंगेज योर माइंड ऑलवेज, मन मना भव, मन मना मतलब अपना जो माइंड है, किस में करो? मेरे बारे में सोचने के,
मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो और मेरे को नमस्कार करो, है ना। एंड माम एवश्यसी, है ना, माम एवश्यसी, तो माम एवश्यसी का मतलब होता है कंप्लीटली एवश्यसी, यू विल कम बीइंग एब्जॉर्ब्ड मत परायणा, मतलब डिवोटेड टू मी। सो अगर आप ऐसा करोगे तो बीइंग कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन मी यू विल कम टू मी। अब ये कोई थर्ड आदमी पढ़ेगा तो बोलेगा अरे यार ये कैसा कैसा है यार ये भगवान तुम्हारा। कहता है मेरी पूजा करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरे 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 सामने झुको। इज ही सम सॉर्ट ऑफ guy who is self absorbed or something? No, because he knows that हम लोगों ने जो कर्म करे हैं ना, मतलब the only way we can purify ourselves is when we are actually thinking and surrendering to him. So when we think and surrender to him, we get purified, and that's why he want us to do that. अगर कोई और तरीका होता है इसका, then he would have told us that as well. He has no issues कि he is already supreme personality godhead, he is himself, वो अपने आप में पूरी तरीके से प्रसन्न है, हमारी तरह उनको जरूरत नहीं पड़ती है वैलिडेशन की इधर उधर से। भगवान को नहीं है जरूरत वैलिडेशन की। एनीवे तो शिला प्रभुपाद ने ये दोनों कोट करे फिर वर्स, है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर कहते हैं कि ओके, तो इज भक्ति योगा इज द ओनली वे, ऐसे पूछा उन्होंने। तो शरद प्रभुपाद ने बोला भक्ति योगा इज द बेस्ट वे, है ना। सो इट्स द फर्स्ट क्लास योगी ओनली थिंक ऑफ कृष्णा ऑलवेज, ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला इफ यू वांट टू नो समवन वी शुड नो हाउ ही लुक्स लाइक, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने बोला हाँ। I said, how does Krishna look like? उन्होंने पूछा। तो शिला प्रभुपाद के सामने ना बाजू साथ में ही ना वो पेंटिंग लगी हुई थी कृष्णा की। बोले कृष्णा लुक्स लाइक दिस। अब वो बोले नहीं नहीं नहीं, दिस इज कृष्णाज पेंटिंग, दैट्स नॉट कृष्णा। तो उन्होंने बोला व्हाट इफ, सो दिस इज हाउ कृष्णा लुक्स लाइक। बोले नो नो नो, हाउ कैन ही लुक्स लाइक दिस इज हिज पेंटिंग। सो प्रभुपाद ने बोला इफ आई गेट ए आर्टिस्ट टू मेक योर पेंटिंग, योर स्केच, योर पोर्ट्रेट, और मैं यहाँ लगा दूंगा, व्हाट वुड यू टेल दैट? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये मिस्टर एंड मिस्टर एक्स की के एक्स की फोटो है? बोले हाँ बोल सकते हो। इसी तरीके से कृष्णा की है। बट उन्होंने बोला बट यू कैन सी मी ना, कि मैं कैसा दिखता हूँ, हाउ डू, कृष्णा तो हमें देखे ना, वी हैवंट सीन कृष्णा, नोबडी हैज सीन कृष्णा, सो हाउ डू वी नो कृष्णा लुक्स लाइक दिस? तब शिला प्रभुपाद ने उनको पूछा, उन्होंने पूछा कि हैव यू सीन योर ग्रेट ग्रैंडफादर? उन्होंने बोला नहीं। डू यू नो, so how do you know your great grandfather existed? तो उन्होंने बोला क्योंकि my grandfather and my father told me। उन्होंने बोला एग्जैक्टली द सेम वे कृष्णा वॉज देयर 5,000 years ago, ठीक है, ही वॉज देयर, लॉट ऑफ डिवोटीज वर देयर, दे सॉ हिम फेस टू फेस, एंड देन दोज डिवोटीज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एंड इट्स थ्रू guru parampara it started going down the line. People kept talking about it, kept talking about it, and that's why what we know about Krishna is not somebody's mind fantasy कि यार चलो आज कृष्णा को, जैसे हम लोग मूवीज में क्या कर देते हैं, वी कैन जस्ट सब जो मन में आता है वैसा दिखा देते हैं कैरेक्टर को, ना स्क्रिप्चर्स के कैरेक्टर को, बट ऐसा नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर में स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो जो पेंटिंग्स हैं, जो बोनाफाइड पेंटिंग्स हैं, दैट्स एक्चुअली हाउ दिस इज हाउ कृष्णा लुक्स लाइक, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम गुरु परंपरा, एंड दैट इज द ओनली वे। तो अब उन्होंने पूछा, स्टूडेंट्स ने, कहते हैं हाउ डू वी बिलीव इन आचार्य आर आचार्य, है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो जैसे उसी तरीके से यू हैव टू बिलीव इन योर आचार्यस बिकॉज यू हैव द एग्जैक्टली द वे यू डो हैवंट सीन योर ग्रेट ग्रैंडफादर, यू बिलीव योर फादर एंड ग्रैंडफादर, इसी तरीके से यू बिलीव योर, यू नो, बिलीव योर गुरु साधु एंड शास्त्र। एंड देन अब नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस वर्स। इस वर्स में क्या लिखा है कि भगवान ने क्या करा? भगवान, the Lord offered his respects to Maharaj Yudhishthir by bowing down at his feet. अब कोई बोलेगा Krishna is supreme personality of Godhead, how is he bowing down to his feet? अब that doesn't make any sense, like some people ask, like ना ऐसा नहीं होता है? आप लोगों ने बहुत बार ऐसे डिस्कशन देखे हैं where Krishna goes, Krishna says, sorry, people say, oh, Ram is greater, and then some Shiv Bhakt says, no, no, Shiva is greater. तो बोले हाउ शिवा ग्रेटर? बिकॉज भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा करी थी, है ना। वो
ब्रिज, पुल बनाने से पहले। सो दीज काइंड्स ऑफ मिसकंसेप्शन जो लोगों में है ना, कि लॉर्ड शिवा इज ग्रेटर एंड राम इज ग्रेटर, द रीजन व्हाई दे हैव दिस इज बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु शिवा इज एंड हु राम इज, है ना, वहीं से आ रहा है वो, है ना। सो नाउ गॉड इज इसमें असम ऊर्ध्व, जैसे इसमें भी शिला प्रभुपाद वर्ड यूज कर रहे हैं, इज असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, ना ही उनके लेवल पे कोई है, ना ही उनके बराबर कोई है, ना ही उनसे ऊपर कोई है। तो गॉड इज असम ऊर्ध्व, है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ओनली वे टू अंडरस्टैंड व्हाई इज ही डूइंग व्हाट ही इज डूइंग इज to become his devotee. There is a verse in Bhagavad Gita, Bhaktya mam abhijanati. Yavan yaschashmi tatvata, tato ma tattvato nyatva vishite tadanantaram bhaktya mam abhijanati. सिर्फ only person who can understand me is भक्ता, है ना। सो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, I can't remember his name. He was very, very passionate about opening a political party. तो कह रहे थे वी हैव, शिला प्रभुपाद वी हैव टू हैव पॉलिटिकल पार्टी, लाइक यू नो, वहीं पर, आई मीन अमेरिकन ही थे वो। तो कहते हैं वी हैव टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, शिला प्रभुपाद, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना देर आर नो, ओनली मलिच्छास आर देयर, देर आर नो क्षत्रियास, नो ब्राह्मणास, लाइक यू नो, पीपल आर लाइक रियली क्लूलेस टू क्या करना है, तो हमें जाना चाहिए। एंड शिला प्रभुपाद न्यू कि यार ही हैज दैट थिंग, ही वांट्स टू डू इट, तो शिला प्रभुपाद सेड या गो एंड क्रिएट ए पार्टी, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने पूछा क्या नाम रखे उनका, उस पार्टी का, तो शिला प्रभुपाद कहे राइट, पार्टी, हमारी पार्टी का नाम रखो इन गॉड वी ट्रस्ट, है ना। वो बोलेंगे कि यार शिला प्रभुपाद ये ऐसा क्यों नाम रखना है, तो शिला प्रभुपाद बोले ये लोग अमेरिका में सब लोग बोलते हैं ना गॉड इज ग्रेट, गॉड इज दिस, गॉड इज ग्रेट, बट एवरीबडी डज दिस, बट नोबडी नोज व्हाई गॉड इज ग्रेट। वी विल टेल देम, आवर पार्टी विल टेल देम व्हाई गॉड इज ग्रेट, इसलिए यू मेक द दिस थिंग, है ना। नाउ देर इज ए सिमिलर उसमें कन्वर्जेशन में, उसके नेक्स्ट डे की कन्वर्जेशन में शिला प्रभुपाद एक्चुअली नरेटेड दिस अमेजिंग थिंग वेयर नारद मुनि was talking to नारायण, एंड नारायण was in a different mood। नारायण ने बोला, नारायण भगवान मतलब विष्णु ने पूछा उनसे, हैव यू सीन एनीथिंग ग्रेट इन माय क्रिएशन। नारद मुनि बोले प्रभु यू आर द ग्रेटेस्ट, आपसे ग्रेट, ज्यादा ग्रेट क्या होगा। बोले नो नो नो, यू डिडंट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीथिंग ग्रेट इन माय क्रिएशन। उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, है ना। एक सेकंड होल्ड करना ना, आई जस्ट हैव टू लेट देम नो दैट क्लास इज गोइंग ऑन, दैट्स माय ब्रदर। भैया भागवतम क्लास हो रही है, मैं आपको फोन करता हूँ, है ना। सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि इज ओके। एनीवे, सो हाँ, तो उन्होंने, नारायण ने पूछा हैव यू सीन एनीथिंग ग्रेट इन माय क्रिएशन। तो वो उनको समझ में नहीं आया नारद मुनि को क्वेश्चन कि यार आप तो बोल रहे हो, आप आपकी क्रिएशन में क्या ग्रेट है, आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो नारायण ने थोड़ा सा अच्छे से बताया, बोले अच्छा ठीक है, लाइक फाइव फाइव एलिमेंट्स, भूमि अपोन भूमि, अपो, ये ना, ये जो पांच खन मनोबुद्धि हैं, ये जो पांच पांच जो एलिमेंट्स है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा वो है, ग्रेटेस्ट, विच एलिमेंट इज द ग्रेटेस्ट। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया नारद मुनि ने, उन्होंने बोला भूमि, है ना, क्योंकि देखो कितनी वास्ट है भूमि और कितना सारा बोझ सहती है भूमि, भूमि इज द ग्रेटेस्ट। तो फिर नारायण भगवान ने बोला नहीं, भूमि कैसे ग्रेट हो गई, हम भूमि तो है लेकिन 70-80% तो पानी है उसके ऊपर, है तो पानी बड़ा होना चाहिए। श्री नारायण मुनि बोलते हैं हाँ यार यू राइट, तो पानी बड़ा है, तो जल बड़ा है। तो अब वो बोले नारायण बोले कि लेकिन जल कैसे बड़ा होगा, एक अपने जो वो थे ना, क्या नाम है, अगस्त्य मुनि, उन्होंने एक बार में पूरा का पूरा समुद्र, सारा समुद्र खाली कर दिया था। तो वो फिर अब बोलो कौन बड़ा हुआ, तो नारद मुनि बोले हाँ अगस्त्य मुनि बड़ा हुआ है। अब अगस्त मुनि बड़े हुए, अब फिर उन्होंने, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, अगस्त मुनि बड़े हुए। तो नारायण बोलते हैं अब अगर अगस्त मुनि बड़े हुए, अगस्त मुनि कौन है, एक ही इज वन ऑफ द स्टार्स ना, अगस्त स्टार। तो कहते हैं अगस्त मुनि एक, वो तो हजार इतने करोड़ों स्टार्स में से एक स्टार हैं, वो कैसे ग्रेटेस्ट हो गए। तो फिर बोले यार भगवान मुझे नहीं पता कौन ग्रेट है। तो फिर उन्होंने बोला, नारद मुनि ने, सॉरी नारायण ने बोला, आपको याद है जब मैं वामन अवतार में आया था, तो मैंने स- तीनों लोक नाप दिए थे, जिसमें ये अगस्त मुनि, ये सारे तारे वारे सब आ गए थे।
तो अब बताओ कौन बड़ा हुआ। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, इसमें तो आपके चरण बड़े हुए, क्योंकि वामन अवतार में उनके चरण गए थे ना, तो आपके वामन अवतार बोले आपके चरण बड़े हैं। फिर उन्होंने बोला अच्छा, मैं बड़ा कि मेरे चरण बड़े? उन्होंने बोला कि नहीं महाराज भगवान, आप बड़े हो, आपके चरण थोड़े बड़े हैं। आप, आपके चरण तो बड़े हैं ही, ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन आपके चरणों से भी ग्रेटेस्ट आप हो। तो उन्होंने बोला अगर मैं ग्रेट हूं तो, बट मैं रहता कहाँ हूँ? जैसे भगवान का जो एक श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक है, अगर मेरे को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढ सकते हो आप? डिवोटीज के हृदय में और डिवोटीज के चरणों में। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है? एंड देन ही रियलाइजेज, नारद मुनि रियलाइजेज कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे थे कि सबसे जो बड़े हैं, सबसे जो हाईएस्ट इन भगवान की नजर में कौन है? उनके खुद के डिवोटीज, है ना। एंड दिस इज द रीजन द ग्रेटेस्ट इज डिवोटी। जैसे महाराज अम्बरीश वाला जो एपिसोड था, व्हाट हैपेंड इन महाराज अम्बरीश एपिसोड, वो महाराज दुर्वासा मुनि ने उनको मारने के लिए राक्षस भेज दिया। अब महाराज अम्बरीश ऐसे खड़े हो गए कि जय भगवान ने, आपकी इच्छा, आज मैं मर जाऊंगा तो दैट्स ओके। एंड देन सुदर्शन, भगवान की आज्ञा नहीं ली सुदर्शन ने, भगवान ने उसको पहले से ही आज्ञा दे रखी थी, सुदर्शन महाराज अम्बरीश के साथ कोई भी नाइंसाफी करे मार देना उनको, मतलब खत्म ही कर देना। तो सुदर्शन तुरंत निकल के ही वेंट फॉर दुर्वासा मुनि। जब दुर्वासा मुनि भागे भागे सब जगह भाग लिए, किसी ने हेल्प, कोई हेल्प नहीं कर पाया, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, कोई नहीं हेल्प कर पाया। तो वापस वो विष्णु के पास गए, भगवान क्या कर रहे हो, मेरे को बचा लो आपका सुदर्शन। तो उन्होंने बोला मैं भी नहीं बचा सकता। तो उन्होंने एक श्लोक बोला था, अहम भक्त पराधीनो, मैं जो हूं, मैं कौन हूं? भक्त, मेरे भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं, मैं उनसे छोटा हूं, है ना। And that is why when he is touching the feet of Yudhishthir, there should be no problem. Because according to सारे scriptures, Bhagwan considers his devotee to be greater than him, है ना। So he is touching his feet. What's the problem? लेकिन फिर भी इट इज सो कंफ्यूजिंग कि यार कैसे, यार मतलब यार युधिष्ठिर महाराज को नहीं पता है कि ये भगवान है, उनको भी पता है, लेकिन उन्होंने पैर छूने दे रहे हैं उनको। यू नो व्हाट आई मीन। सो ये सारी चीजें हैं, द रीजन व्हाई इट इज वेरी वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड, because we don't understand Lord, we don't understand Krishna properly. And the reason why we don't understand Krishna properly is because we don't hear about Krishna from the bona fide sources. अभी क्या हुआ, एक आई वॉज टॉकिंग टू, किससे मैं बात करता, आई कांट रिमेम्बर, है ना। आई वॉज टॉकिंग टू, हाँ हाँ, हमारे यहीं पर काम पे ना एक मेरा फ्रेंड है, उसका एक इंडिया से कोई आया हुआ है ना। तो वो उससे मैं बात कर रहा था ना, वी वर टॉकिंग अबाउट कृष्णा एंड ही वाज टेलिंग मी दैट ही नोज दिस, ही नोज दिस, ही नोज दिस। तो एंड ही वाज लाइक रियली थिंकिंग दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट कृष्णा। तो फिर मैंने उसको पूछा, आपने यू नो यू नो अ लॉट, कहाँ से पढ़ा? कहता अमर चित्र कथा। His knowledge is from Amar Chitra Katha. And I was thinking, oh, and he was so proudly telling me Amar Chitra Katha. And this is the impact that we have on our kids, on our society, because we think Amar Chitra Katha is much more bona fide than Bhagavad Gita as it is, और श्रीमद् भागवतम। एंड दिस इज आर, क्या बोलूं मैं इसको, दिस इज हमारी विडंबना ही यही है ना। वी थिंक दैट वी डोंट नो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, है ना। भगवान को जानना, इट्स नॉट इजी। आई मीन फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो व्हाट हैपेंड युद्ध में, पहले ही बोल दिया था उन्होंने, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन युद्ध। भगवान ने बोला था नहीं बोला था, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द युद्ध। लेकिन वहां से आपको पता है, फर्स्ट जब युद्ध की घोषणा हुई, तो कौरवों की तरफ से किसने शंख बजाया था पहले? डू यू नो हु ब्लू द कॉन्च? एनीबडी नोज? प्रभु भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, यस, भीष्म पितामह ने शंख बजाया। और वो जो शंख ऐसा था कि सारी की सारी कौरव सेना का ऐसा मनोबल बढ़ गया, उनको लगा दैट्स इट, हम लोग तो जीत गए, इस शंख से ही जीत गए थे वो लोग तो। आपको पता है पांडवों की तरफ से, जब, क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ के वो थे, सेनापति थे, आपको पता है, सॉरी, कौरवों के सेनापति थे। पांडवों के सेनापति कौन था पता है आपको? हु वाज द सेनापति ऑफ कौरव्स, और पांडवस, पांडवस? रबरी। हाँ, नो आई थिंक हु वाज इट? दृष्टि तुम।
दृष्टिद्युम्न, दैट इज करेक्ट। दृष्टिद्युम्न, आपको पता है फर्स्ट शंख किसने बजाया था पांडवों की तरफ से? वो लॉर्ड कृष्णा है। हाँ, अब सोचो, उन्होंने युद्ध के पहले ही बोल दिया था मैं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, और सबसे पहला शंख वो बजा रहे हैं। तो वहीं से उन लोगों को आ जाना चाहिए था, यार ये क्या है यार, ये तो रूल ही तोड़ रहे हैं, पहली बार बोले मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, और शुरू ही वो कर रहे हैं। एंड व्हेन कृष्णा ब्लू द कॉन्च शेल, उनकी सबकी हालत खराब हो गई। ठीक है, सारे कौरवों की हालत खराब हो गई, पांडवास का वो एकदम बढ़ गया। बिकॉज कृष्णा डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उनको पता था कि मेरे जो भक्त हैं ना, उनका जीवन दाव पे लगा है। सो ही डिड नॉट केयर एनीथिंग। इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णा इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग कृष्णा को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को कृष्णा को सरेंडर करने की जरूरत होनी चाहिए। कृष्णा इज someone to surrender to, not someone we need to understand. But the problem is यहाँ पर वही है ना, catch 22, if we don't understand him it's very hard to surrender, है ना? हमें पता ही नहीं है उनकी ग्लोरीज, तो how can we surrender? So we have to listen to his glories, but we should listen to his glories not to understand him. We should listen to his glories to be able to surrender onto him, है ना? So कृष्णा कैनॉट, भगवत गीता का एक वर्स है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म है ये सारे दिव्य हैं, दे आर नॉट मटीरियल, दे आर ऑल स्पिरिचुअल। एवं यो वेति तत्वता, जो ये तत्वता, जो ये एज ए फैक्ट जानता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न इति। त्यक्ता, वो अपनी देह त्यागता है जब, उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मामेति सो अर्जुना, वो मेरे पास आता है। अर्जुन कौन बोल रहा है? कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं, है ना? सो भगवान को समझना इज एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉसिबल। अभी सोचो, जब कृष्ण भगवान वहां पर द्वारका गए थे, सॉरी मथुरा गए थे, वहां पर वो लड़ाई थी उनकी, चाणूरा और मुष्टिका, जो बड़े बड़े वो थे, पहलवान थे, उनसे लड़ाई थी कृष्णा की। अब जब अनाउंसमेंट हुआ कि चाणूरा और मुष्टिका लड़ाई करेंगे कृष्ण और बलराम से, तो वहां पर सारे ऑडियंस में गोपास बैठे हुए थे, बोले कौन, ये क्या बोल रहे हैं यार ये लोग? अरे ये कृष्ण से, कृष्ण इनसे कैसे लड़ेगा इन पहलवानों से? ये तो वही कृष्ण है जिसको गली में हम पीट पीट के हालत खराब कर देते थे उसकी। वो बेचारा भागा भागा फिरता था, वो कैसे मारेगा इनको? इवन ये होता था जब कृष्ण हार जाते थे, तो उनसे ह्यूमिलेटिंग एक्ट करवाए जाते थे कृष्णा से, है ना? और कृष्णा कहता था मैं नहीं करूंगा, तो बोलते थे भाग जाओ यहाँ से, नहीं करना है तो भाग जाओ यहाँ से, कब कल से खेलेंगे नहीं। तो वो जाके यशोदा माँ को बोलते थे, माँ मैया वो मेरे को खेलने ही नहीं, खिलाते ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया मैं तो राजा का बेटा हूँ। तो बोले राजा का बेटा होगा घर में, है ना? यहाँ खेलना है ना तो हमारे जैसे खेलना पड़ेगा, अपने घर जा, अगर अगर राजा का बेटा बनना है घर जाके बन, यहाँ पर नहीं है तू राजा। So this is how they used to treat Krishna. He used to love it because भगवान को he does not want awe and reverence. He wants love. Gopas used to love him. तो एक्चुअली क्या हुआ, चानुरा और मुष्टिका को जब कृष्णा ने हरा दिया ना, एक्चुअली हरा दिया, तो वही गोपाल लोग वहां ऐसे करके बैठे थे, बोले नहीं, ये हमारा कृष्णा नहीं है। बोले कैसे नहीं है? बोले ये है ही, हो ही नहीं सकता यार, ये हो ही नहीं सकता, इतने बड़े इसको कैसे हरा रहा है? तो उन्होंने सब लोग बोले नहीं नहीं ये कृष्णा ही है, कृष्णा ही है। तो उन्होंने बोला अच्छा कृष्णा है ना, तो पहले मेरे से अभी एक राउंड मेरे साथ भी हो जाए। अगर मैंने इसको हरा दिया इसका मतलब ये कृष्णा है, और नहीं हरा पाया मैं, इसका मतलब ये कोई और है, क्योंकि कृष्णा को तो मैं रोज ही हराता हूँ वृंदावन में। तो फिर कृष्णा ने उनके साथ लड़ाई करी और कृष्णा को हराया उन्होंने। एंड देन ही गोज ना ना तू कृष्णा ही है। देन उसके गले मिले और उसको खूब तारीफें करी, बोले योर कृष्णा, योर कृष्णा। कहने का मतलब यह है कि इट इज वेरी वेरी हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कृष्णा। अब सोचो, जो पूरे ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड उनके पोर्स में से निकल रहे हैं, उन सबके स्वामी हैं वो 3 महीने से बेचारे घर नहीं जा पा रहे अपने। क्यों? क्योंकि कोई जाने नहीं दे रहा, परमिशन ही नहीं मिल रही है उनकी। अभी दिस इज हाउ अमेजिंग द, hi, this is how amazing Krishna is, है ना? This is how amazing is. So when Krishna touching feet of Yudhishthir, what is he doing? He's showing us सदाचार, है ना? अब सदाचार हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली नॉट बिकॉज
not be actually sadachar is for everyone, but for us who are devotees, who are actually practicing, we are trying to we are practicing to become a devotee, हम लोगों के लिए तो और भी बड़ा हो जाना चाहिए। सदाचार का क्या मतलब होता है? सदाचार का मतलब होता है कि एटिकेट्स, लाइक आप एटिकेट्स आप में होनी चाहिए। हमारे साथ क्या है, 2-3 महीना हो गया, 2-3 महीना के 2-3 साल हो गए भक्ति में, हमें लगता है कि हम तो, हमारे जो नए नए बंदे हमसे मिलते हैं, हम तो, वो तो हमारे कुछ भी नहीं है, जूते के, हमारे जूते हमारे जूतों के बराबर भी नहीं है वो। क्योंकि आपको पता नहीं है, 16 राउंड करता हूँ मैं, है ना, हमें ऐसा लगने लग जाता है। हम लोगों को लगता है हमारा सदाचार कहीं तेल लेने चला जाता है, क्योंकि हमें लगता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, कई बार लगता है कि अरे यार, हम प्रीचर, इसको क्या पता है, ही डजंट नो एनीथिंग, लाइक ही हैज नो आइडिया, अभी बेचारे बच्चे हैं ये लोग, है ना। बट वी हैव नो आइडिया, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ आवर ग्रोथ इन भक्ति। How do we know we are growing in bhakti is when we are actually treating every single person, whether it's whatever level they are on, we actually look at them as a favorite of Krishna. वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जो बिल्कुल नए नए भक्त हैं उनको और जो सीनियर भक्त हैं उनको एक जैसे ट्रीट करें, वो नहीं कर रहा मैं, वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट, थोड़ा सा होना चाहिए। क्योंकि बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन है, ये सामने वाला जो पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, कृष्णा लव्स दिस पर्सन, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम ट्राइंग कृष्णा टू लव मी, है ना। कृष्णा डजंट लव मी एज मच एज ही लव्स दिस पर्सन। अगर हम लोग ये भाव से रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन इज वी विल बी एबल टू ऑलवेज स्टे इन दैट सदाचार। भले ही वो कोई भी हो, नए बंदे हों चाहे पुराने बंदे हों, किसी भी, हम लोग प्रीचर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, टेम्पल की कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, और जैसे ही मिल गए हमें लगता है बाकी सब लोग तो हमारे बैक एंड ऑर्डर पे होने चाहिए, क्योंकि हम लोग वी आर ऑन ए पोजिशन somehow now. That is not the purpose of bhakti. Bhakti, Srila Prabhupada used to say that the post that you get in Krishna consciousness और भक्ति के प्रचार में, the post that you get is to serve, not to lord. ऐसे वो जोर से बोलते थे, it's not to lord it over, you don't have to express people, I am the Lord, you listen to me, do what I say. No, when we get a position, that position is to serve, that position is actually to serve, you know. And sometimes in serving you have to be stern, but inside we should know that that person that I'm trying to be rude at, or I'm trying to control, or I'm trying to guide in an improper way, that person is more closer to Krishna than I am to Krishna, ये हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। And that's when we will be able to use our sadachar, and we should be able to अंडरस्टैंड कि यार हम लोग कहाँ जाना है। तभी तो राधानाथ स्वामी क्या महाराज कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑफ एटिकेट्स मेक्स अ डिवोटी ब्यूटीफुल इन द आईज ऑफ कृष्णा। आई विल रिपीट, observation of etiquettes makes a devotee beautiful in the eyes of Krishna. That means the more amazingly you treat other people, the more Krishna will be pleased by you. He will look at you as a beautiful person. And this is like, I when I heard this, I thought this is incredible, you know. So we need to understand that who we are and where we are, and वहां से हमें अपनी सेवा शुरू करनी है, हमारी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, गोपिर भर्तुर पद कमलियोर दास दास अनुदास। हम लोग कौन है? हम लोग दास के दास के दास के दास के दास हैं, है ना, ये हमें मानना चाहिए। हम लोग ये श्लोक भी बहुत बार बोल देते हैं लोगों के सामने, बट डू वी एक्चुअली बिलीव दैट फ्रॉम इनसाइड? दास का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दास? इफ आई एम राइटिंग टू यू मितुल प्रभु, Mithil Prabhu, would you be able to come to the temple tomorrow? It would be nice to see you. Your servant Vishnu Priyeshwar Das. मैंने लिख दिया, ठीक है। I wrote, मिथुल प्रभु को लिखा विष्णु प्रियेश्वर दास। अब मिथुल प्रभु ने मुझे रिप्लाई करा, प्रभु जी, oh thank you very much, I would love to come to temple tomorrow, can you pick me up? And then I'm thinking, oh, ये तो ज्यादा हो गया यार, कैसे उनको उनको पिक करने जाऊंगा, 20 मिनट्स इधर, फिर 30 मिनट्स उधर, 50 मिनट्स में पहुंचूंगा। मिथिल प्रभु यार, सुबह सुबह बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई जस्ट रोट यू ए मैसेज, योर सर्वेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सर्वेंट? डोंट आर्ग्यू, जस्ट डू इट।
You know what I mean? So this bhav, just it is very subtle to understand. I'm not saying that we should be stupid enough to take responsibility. We are not, we're not supposed to take, or make ourselves uncomfortable, or अपनी क्या बोलते हैं, अपनी family भाड़ में जाए. I'm not talking about that. I'm just saying that, see how subtly, if we are, we do we really mean when we say I'm your servant? This is the whole point. If I'm telling Mitul Prabhu, I'm writing down, I'm बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, sign by your servant Vishnu Priyeshwar Das. Prabhu, can you pick me up tomorrow? Oh, sorry, Prabhu, 20 minutes extra. That means I have to wake up 20 minutes early, Prabhu. That's not feasible. Can you ask in Naam Sankirtan, Prabhu? Or please, Prabhu, see if there is anyone else. Put it in a group, Prabhu. Let's see someone. If I have, suppose मेरे मेरे को अपनी पूरी फैमिली लेके जानी है, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, that's understand. मित्र प्रभु, I'm so sorry, I don't have any space in my car, but let me see what I can do for you. Let me put a note in the group for you. है ना? आई एम योर सर्वेंट, बट सॉरी प्रभु, आई कांट हेल्प यू. अब मंदिर में बहुत बार होता है, प्रभु, गो पेरे भरते हो दास दास अनुदास, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं. प्रभु, थोड़ा सा पॉट शेड वाला बंदा आया नहीं है, कैन यू वॉश सम पॉट्स? प्रभु यार, अभी तो मेरी चैंटिंग भी पूरी नहीं हुई है. देन डोंट क्लेम टू बी अ दास. इफ यू आर दास, दासत्व इज नॉट इन योर वर्ड्स, दासत्व इज इन योर character. That's dasat we are talking about. Krishna get pleased by that dasta, not the word thing, word ki, you know what? को फिर भरते हो दास 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 अनुदास. अरे बहुत बार सुन लिया है, but are you sure you really want, you're actually telling me that you're das? Having said that, but remember, I'm not asking you to do things at the cost of your family. That's not the point I'm making. देखो, हम सबके पास restrictions हैं. I can't say because I have more restrictions, क्योंकि weekend में it's very hard for me to get out and do anything because I have a family commitment. So I know and I understand that, but that bhav that I'm talking about, I want that bhav for all of us to feel from inside and understand कि ये वाला जो भाव है, पहले तो सोचो, do I have that bhav or no? अगर नहीं है तो what can I do to have that bhav? और अगर वो भाव है, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट सेक्रीफाइसिंग योर फैमिली फॉर दैट भाव. यू नो व्हाट आई मीन? भाव रखना, लेकिन अपने आप को ओवर कमिट भी नहीं करना. ठीक है? नाउ, अब वी थिंक, अब हमें क्या लगता है कि बिकॉज वी ऑल हैव टू ग्रो इन भक्ति, मटीरियली हम ग्रो करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई जॉइंड सीबीए, यू नो आई वॉज अ फ्रंट लाइन स्टाफ. Then I got promoted. We grew. जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी जो सबॉर्डिनेट लाइन है वो इंक्रीज हो रही है. मोर एंड मोर पीपल आर रिपोर्टिंग टू यू, मोर एंड मोर पीपल आर रिपोर्टिंग टू यू, एंड मोर पीपल रिपोर्टिंग टू पीपल दैट रिपोर्टिंग टू यू. है ना? ऐसे कर करके यू कीप ग्रोइंग. तो हमें क्या लगता है कि नाउ व्हेन आई एम दिस एग्जीक्यूटिव मैनेजर, व्हाट डज दैट मीन इज I have 260, 270 people that are reporting to me. I am their Lord. है ना? ठीक है? So how do I know I am growing? More and more people are under me. है ना? That means I am above more and more people. That is the growth that we see in material life. Spiritual life में उल्टा है. The more you grow in bhakti, the more you realize that where you are, that means everyone else seem to be better than you in terms of bhakti. But remember, so growth, how do you know you're growing in bhakti? When you realize that everyone else is actually a better devotee than you. Now, there is a caution in here. एक मैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई इसमें. इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड थिंक वी आर रबिश. आई एम नॉट सेइंग दैट. सेल्फ लव होना चाहिए, वी नीड टू हैव दैट सेल्फ लव, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर अगर हमें लग रहा है कि हम लोगों से बेटर हैं, देयर आर सम पीपल आई एम बेटर देन देम, दैट मीन्स हमारी भक्ति उतनी परिपक्व नहीं हुई है. इट हैजंट मैच्योर्ड टू द लेवल दैट इट शुड बी. है ना? व्हाट वुड, सो इसका, डोंट पैनिक विद दैट, इट्स ओके. What do you do is you understand and accept that situation. Yes, I am not spiritually matured. Now what do I do? I need to increase my sadhana. और जैसे जैसे आप साधना इंक्रीज कर रहे हो और लोगों से वो कर रहे हो, then you will see that you will start feeling that, you know what,
I think everyone else has more favor of Krishna than I have. That means everyone else is more deserving of Krishna's favor than I am. When you have start having that feeling, then you will know that yes, I'm growing in bhakti. But as soon as you know you're growing in bhakti, you go back again. इसका मतलब क्या हुआ? You should never ever even realize. I shouldn't say. How should I say it without making it mean different? Okay, so we should grow in bhakti, but that growth in bhakti should let us know that my job is not to become better than everyone else. My job is to become better than what I was yesterday. Comparison जब हम करते हैं, that's when we started putting people down. और फिर खत्म हो जाता काम. That's not. Then as soon as you start seeing, oh ये भी मेरे से छोटा है, ये भी छोटा, अरे यार ये प्रभु जी कैसे हैं यार, ये तो मेरे से पहले से हैं यार, तो एकादशी में व्रत ही नहीं रखते हैं. I mean, you cannot compare yourself with that person, because that person may not be doing Ekadashi Vrat, but he must be doing 64 rounds every day. आपको क्या पता? He is exceptional in some of the dealings with Krishna. When he is doing bhoga, he is not thinking about और next promotion कब आएगा, मेरी बीवी ने क्या बना दिया, यार ये वो क्या यार, इतना टेस्टी खाना है, 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा. अगर मैं ये सोच रहा हूँ, एंड समवन एल्स हु इज नॉट चैंटिंग एट ऑल, बट व्हेन ही इज डूइंग भोगा, ही इज सेइंग भगवान, इट इज फॉर यू, प्लीज relish it, all for you. And after you relish it, Bhagwan, please make it potent so that when I eat it, I will actually understand my position in front of you. अभी मैं बहुत पफ्ड अप हो गया हूँ भगवान, प्लीज ये भोग लगाओ, प्लीज इसे खाओ, ये जैसा भी है हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, प्लीज आप इसे लीजिए, और प्लीज जो भी रेमिनेंस होगा, प्लीज हमें हमें आशीर्वाद दीजिए कि वो रेमिनेंस खा के हमारी बुद्धि थोड़ी सी ठीक हो जाए, एंड आई कैन डू 16 राउंड्स ऑफ यू भगवान. एंड ना दिस गाय इज डूइंग दैट काइंड ऑफ भोगा, और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले. अरे यार आज 2 मीटिंग की रिक्वेस्ट कैंसिल होगी, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड. अरे यार ये बीवी ने ना इसमें शायद नमक डाला नहीं डाला, पता नहीं यार, आई डोंट अंडरस्टैंड. और इसको मैंने बोला था 3 दिन से एक ही चीज खिला रही है, आई हैव नो आइडिया, मतलब आई डोंट नो यार. भगवान इसमें कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारा चल रहा है, ठीक है. एंड व्हेन यू डू दिस, देन ऑब्वियसली योर प्रेयर एंड द प्रेयर ऑफ द अदर पर्सन, वो भले ही 16 राउंड नहीं कर रहा, बट उसकी व्हेन ही इज प्रेजेंटिंग दैट टू कृष्णा, कृष्णा विल बी एबल टू टेक दैट मोर देन आवर्स, क्योंकि हमारा तो ध्यान ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो भगवान को इसलिए दे रहे हैं, जल्दी जल्दी खाओ यार, भूख लग रही है, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना. और कई बार तो ऐसे दिखा के, भगवान ये रहा देख लो, आई आई नो आप आंखों से खा लेते हो और आपके लिए टाइम वेरी नहीं करता है, तो आप एक काम करो, 30 सेकंड है आपके पास, है ना, बिकॉज यू आर टाइम, समय आप ही हो. तो आप एक काम करो, ये जो 30 सेकंड दे रहे हो ना, उसको आप आधा घंटा खुद ही बना लो और अपने आप खाओ, लेकिन मैं 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रखूंगा प्लेट. नाउ व्हेन वी आर डूइंग लाइक दिस, someone else is doing amazing bhoga, that means that person is growing in bhakti. हम लोगों को, वी कंपेयर अस विद अदर्स. कैसे? वो कितने राउंड कर रहा है, वो एकादशी में क्या करने वाला है, वो चतुर्मास में वो क्या कर रहा है, वो बंदा क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम मंथ में क्या कर रहा है, है ना, उस वो बंदा वो अधिक मास में क्या कर रहा है, वो बंदा दामोदर मास में क्या कर रहा है. अरे हाँ ठीक है, वी शुड नॉट वरी अबाउट कि उस समय कोई क्या कर रहा है. वी शुड वरी अबाउट व्हाट शुड आई डू टू गेट आउट ऑफ माई अनर्थास. वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर पीपल, दैट्स नो प्रॉब्लम. लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार देख, दामोदर में ना ना मैंने दामोदर मंथ आ रहा है, मीठा बिल्कुल बंद है, और ये तो कुछ सामने दबा के केक ठूसे जा रहे ठूसे जा रहे हैं, मतलब इनको कोई वही नहीं है. अरे हु केयर्स भैया, उनके वो कुछ और कर रहे हैं अपनी साधना, आप क्यों उसमें घुस रहे हो, है ना. यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन यू. दिस इज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, नॉट हम लोग क्या लगते हैं, हम अपने लिए तो लॉयर है ना, और बाकी सारी दुनिया के लिए जज हैं. थिंक अबाउट इट. अपने लिए तो अरे प्रभु आपको क्या पता क्या प्रॉब्लम में हूं मैं, है ना, आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा ना तो तेरी आंखों से भी आंखों आंसू निकल जाएंगे, ऐसे बोलते ना, सब लोग बोलते हैं. लेकिन जब हम लोग किसी और की बात होती है, वी बिकम जज. ये गलत है जी. आई डोंट लाइक दैट एटीट्यूड. Who are you to judge? Who are you to like or dislike the attitude? You should worry about your own growth. You should worry about your own
अनर्थात यू शुड वरी अबाउट व्हाट यू कैन डू। अमाने ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अमाने ना मान देना, हमें मान नहीं चाहिए। और लोग हर किसी को मान देना है, किसको मान देना है? एवरीवन, नॉट ऐसा नहीं कि सिर्फ डिवोटीज को मान देना है, हिंदुओं को मान देना है, सनातनी को मान देना है, हिंदुस्तानियों को मान देना है ना, जो वृंदावन वासी। नो, अमाने ना मान देना किसको? सबको। और जो ऐसा करता है, ओनली दे कैन डू कीर्तन या सदा हरि, ओनली दोज पीपल कैन चैंट द होली नेम कॉन्स्टेंटली। इफ यू वांट टू चैंट द होली नेम कॉन्स्टेंटली, you need to understand that we have to develop this quality. त्रिनादपि सुनीचेना तरोरीव सहिष्णुना, है ना। तो ये जो ये वर्ड्स नहीं है, दीज आर नॉट वर्ड्स, देयर आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू इट। सो हम लोगों के आज के, ओके यार 49 हो गया। आई थॉट मैंने आधे घंटे की तैयार करी थी क्लास, तो एनीवे। सो लेट्स रिकैप। सो भगवान, हम लोगों ने शुरू में देखा कि शिला प्रभुपाद के डिस्कशन से हमें पता चला कि भगवान को हम समझ ही नहीं सकते एक्चुअली ना। और भगवान को कैसे समझा जा सकता है? सिर्फ भक्तों के थ्रू समझा जा सकता है। और भगवान कौन है? जो अपने डिवोटीज को अपन से बड़ा मानते हैं, है ना। उनको लगता है कि जो डिवोटी मेरे को, मेरे पे अपना हक जताता है, भगवान को वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हक ऐसा नहीं कि नौकर वाला हक। ऐ रामू, ये ले 100 रुपए, मेरे को अगली प्रमोशन चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, भगवान 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रमोशन दे दो। अरे तुम्हारे सहस्त्र लक्ष्मियां उनके पैर दबा रही हैं, तुम उन्हें 100 रुपए का ब्राइब दे रहे हो यार। जैसे उनको लग रहा है यार, चलो 100 रुपए और आ जाएंगे, 100 रुपए और आ जाएंगे, मेरे बढ़ गया, मेरे पास, मेरे जेब खर्ची हो गई। अरे ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, यू नो। सहस्त्र लक्ष्मियां उनके पैर दबा रही हैं और यूर ब्राइबिंग हिम। सो दैट्स नॉट द, we can't understand, we cannot please Krishna through that. We can only please Krishna जब उन पे हक जताएं as a love। एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, शिला प्रभुपाद आई वांट टू बिकम गॉड। तो यूजुअली शिला प्रभुपाद ऐसे लोगों को ना काट पीट के फेंक देते थे ना ना, वर्ड से। उन्होंने क्या बोला? व्हाई व्हाई डू यू वांट टू बिकम गॉड? यू शुड ट्राई टू बिकम फादर ऑफ गॉड, मदर ऑफ गॉड। डोंट ट्राई एंड बिकम गॉड, यू कैन बिकम बिगर देन गॉड। व्हाई यू वांट टू बिकम गॉड? देयर आर पीपल बिगर देन गॉड, हु, उनके मदर फादर। सो दिस इज हाउ कृष्णा इज सबसर्वियंट टू देयर भक्ता। इसीलिए इट इज वेरी हार्ड टू विन कृष्णा, बिकॉज व्हेन कृष्णा gives you, when Krishna is pleased by you na, Krishna gives himself to you, Krishna gives himself to us. And if we are not ready, you know, if we are not ready, then he will never be able to give himself to us. So the whole idea of bhakti is to get ready for that, and to make sure that we the only way to understand Lord is through devotees and through Guru Sadhu and Shastra, है ना। तो we'll stop here। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share? प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि जैसे ही हम सोचने लगते हैं कि मैं दूसरों से बड़ा हूँ, हम्म। लेकिन मैं मेरी मेरी बात बताऊं, जो मुझे पर्सनली लग रहा है हम्म। कि मैं बड़ा तो 100% नहीं हूँ। हम्म। तो मैं लिटरली मीन करता हूँ, हम्म। क्योंकि वो हिसाब से नहीं कि मेरी भक्ति बढ़ी है, लेकिन मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही है ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा दिस इज है। अ गुड प्लेस टू बी इन प्रभु, दिस इज अ गुड प्लेस टू बी इन। बट ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरी, जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही है। तो ऑलवेज कॉन्टम्पलेट, टॉक टू प्रभुपाद, टॉक टू अपने डीटी से, उनको बोलो कि यार मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही, प्लीज हेल्प हेल्प करो मेरी। फिर ना स्पीक टू सम मेंटोर से बात करो कि यार मेरी भक्ति बढ़ नहीं रही, प्लीज हेल्प मी। एंड देन वट एवर यू गेट इंस्ट्रक्शंस, यू फॉलो इट एंड मेक ए प्लान। जैसे हम लोग अपनी मटेरियल लाइफ में प्लान करते हैं ना कि यार ये करने से थोड़ा सा, लेट मी ट्राई एंड इम्प्रूव माई, suppose if I have to improve the way I do presentation, so पहले I would look at the books, किसी को बोलूंगा आप मेरी presentation देख लो, फिर वो बोलेंगे अच्छा आपने ना बीच बीच में रुक रहे हो, don't stop in between, talk slowly so that you have more time to think, है ना। ऐसे करके कुछ tricks मिलेगी, then you start practicing that and then you go and do the presentation again, then you get the feedback again। ऐसा करोगे ना आप, सेम चीज अगर आप अपनी
उसमें स्पिरिचुअल लाइफ में अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड दैट ग्रोथ एज वेल। लेकिन ये इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन, कि अगर आपको लगता है ना कि जेन्युइनली आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट्स ए गुड प्लेस टू बी इन। का मतलब यह है कि दैट मीन्स यू आर अवेयर। lot of people, including myself, sometimes I am not even aware of whether I'm growing or not. तो मुझे लगता है कि मेरी बहुत ग्रोथ हो रही है because I've got around 5 people listening to me right now, और भक्ति वृक्षा में 180 people listening to me. But just because they are listening to me, that doesn't make me a better person than them. That doesn't make me grow. But if I take that as a service and responsibility, then I have a chance to grow. But if I start treating all of them as, you know नर्सरी के बच्चों के जैसे, और आई स्टार्टेड ट्रीटिंग माई सेल्फ कि आई एम ए सुपीरियर टू देम, देन इट विल नॉट, देन आई एम गोइंग अवे फ्रॉम भक्ति, देन आई एम व्हाट आई एम डूइंग इज, in the garb of bhakti, I am fulfilling my own agenda, which is to get popularity, to get name, fame, adoration. लो यार, ब्रजेश प्रभु जा रहे हैं, पता है? तो पता है ब्रजेश प्रभु मेरे पास बैठे थे। I mean, these kind of stuff, when you hear it, one person actually came and say कि I only exist because of you, ब्रजेश प्रभु। अब now I'm standing over there, ऐसा बड़ा सिर हो जाता है यार, देखो। अरे रॉक्सी, डिडंट यू हियर दैट? प्रभु एक बार और बोलना, इंग्लिश में बोलना है, वाइफ ने नहीं सुना अभी ना। कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम, क्योंकि बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर नेम, फेम, एडोरेशन, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज नो 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 नो, दिस इज नॉट। इफ आई अगर मेरा सिर बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स आई एम टेकिंग ऑल द क्रेडिट। लेकिन आप सोचो, एक कड़छी है, एक कड़छी यहाँ से सब्जी निकाली, उधर परोस दी। अब वो बंदा कह रहा है क्या कड़छी है साहब, क्या पनीर परोस रहा है, परोसा है इस कड़छी ने, मजा आ गया। अब कड़छी ने थोड़े बनाया है पनीर। अब कड़छी को कभी घमंड नहीं आ सकता, बिकॉज कड़छी को पता है मैंने तो यहाँ से उठा के उधर डाला है, आई डिड नॉट कुक इट। ठीक है। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आवरसेल्व्स एज जस्ट कड़छी ना, तो फिर सिर नहीं बड़ा होगा। देन यू विल नो दैट आई एम गिविंग ऑल द क्रेडिट टू हु? Credit to Srila Prabhupada, credit to Guru Maharaj, credit to all of these lectures that we listen, all the notes that we get, you know, everything goes to them because I'm what? I'm Kadchi. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। If you genuinely believe in that, then obviously बड़ा सिर नहीं होगा। लेकिन अगर बड़ा हो रहा है सिर, if you're getting proud, इसका मतलब क्या है? यू आर सेइंग, अरे यार ये मलाई आ रही है तो प्रभुपाद के लिए, लेकिन थोड़ी सी मैं चाट लेता हूँ, बाकी देता हूँ। है ना? दैट्स नॉट, दैट इज, इट इज वेरी डेंजरस व्हेन यू ईटिंग दैट ना, वन डे इट विल कम दैट you will be numb to all the emotions of bhakti, and then you become so robotic. And one day, at the fag end of your life, you'll think, oh my goodness, what did I do? What happened? मैं यहाँ तक कैसे आया? What do I do now? You have no taste for chanting, you have no taste for bhakti. You have this massive ego, and you have this massive thing where people are look up to you, and you cannot, and you want to do all these anarthas, but you can't do it in public, so you're doing it in person, and you become this and then you're hating yourself, you're glani mein chale gaya, and one day you die without realizing, my goodness, what was the purpose of my life? Because मेरा purpose क्या था? I wanted to take credit as a kadchi. I wanted to take credit of the paneer because मुझे लगने लग गया था कि मैंने बनाया पनीर, you know and that is why, if you're thinking like that, treat it as a experiment, science, look it up as a science thing कि let me, it's all in my hand, I can actually grow in bhakti. It is possibility for me to grow in bhakti. What do I need to do is, I need to follow some set of किसी की guidance के साथ, किसी से बात करके, किसी की mentorship में, and do it scientifically. Make sure कि आप जो भी commitment करो, there should be a follow up thinking that, is it working or not? If it's not working, change the strategy, but keep trying. That's all we can do, Prabhu. थैंक यू प्रभु जी। Thank you. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत Hare प्रणाम। Krishna. Hare Krishna, Mata ji. Dandavad प्रभु pranam, Mata ji. आपने, हाँ प्रभु आपने एक वो सर्वेंट वाला जो बोला प्रभु, हाँ, आई डू एग्री प्रभु, इट्स रियली वेरी डीप कि प्रभु वो सर्वेंट बोलना तो बहुत इजी है, हम हाँ, मैसेज में लिख देते हैं योर सर्वेंट, hmm, बट प्रभु हम रियली उसको रियलाइज नहीं करते। और प्रभु शायद very हम true. वो करते भी नहीं है प्रभु, जो एज ए सर्वेंट हमें करना चाहिए, कई बार इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली वो भाव नहीं आता पाता है प्रभु। Yeah, true. उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, फैमिली ऑब्लिगेशन या कुछ भी कह सकते हैं, Hmm, बट स्टिल हम उस लेवल पे
नहीं आ पा रहे हैं, अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, चाहे प्रभु हम हम्म कितनी अच्छी चैंटिंग करें, चाहे कुछ भी करें, हम्म, पर वो अंदर सर्वेंट वाली जो है ना प्रभु, वो भाव नहीं आ पा रहा है, दासानुदास नहीं वाला आता भाव नहीं है। आ पा रहा है प्रभु। हाँ, तो दैट्स ओके इसके ऊपर माता जी। कुछ। यू नो व्हाई? हम्म। देखो, इट्स ओके एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास वो भाव नहीं आ रहा है। देखो, भगवान इज नॉट अ पर्सन हु इज सिटिंग अप देयर थिंकिंग ओके क्वेश्चन पेपर हो गया भैया, टाइम अप नाउ, 10 में से 9, 10 में से 2। ही इज नॉट लाइक दैट। He is not looking at your actual efforts. He is looking at how much effort. No, he's not looking at your result. He's looking at your efforts. For example, somebody is trying to do 16 round every day, but he's unable to do 16 rounds every day, and he dies like that. But every single day, he's genuinely picking up the beat, like, आज तो मैं करके रहूंगा, and he's trying his best, but he can't achieve it. एक तो ये बंदा हुआ। एक दूसरा बंदा है, ही इज डूइंग 16 राउंड्स एवरी सिंगल डे, है ना। ही इज डूइंग 16 राउंड्स एवरी सिंगल डे वेरी कंफर्टेबली, बट ध्यान इधर उधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एंड ही इज वेरी वेरी कंफर्टेबल इन हिज भक्ति, ही इज नॉट ग्रोइंग इन, बिकॉज इफ यू आर कंफर्टेबल दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, ठीक है। वेरी वेरी कंफर्टेबल इन हिज साधना, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, देन दैट पर्सन will will have to, I mean, we might have to come back and try again, because this other person actually made an effort to grow on every single day, even though he was not परफेक्ट, ही केप्ट ट्राइंग। भगवान को हमारे एफर्ट ज्यादा प्यारे होते हैं, बजाय इसके कि हम उसको परफेक्शन से कर पाए नहीं कर पाए। सो आपने जैसे बोला ना, प्रभु हम, आई स्टिल डोंट हैव दिस, आई इवन आई डोंट हैव दैट, लाइक आई राइट योर सर्वेंट, बट आई डोंट रियली, sometimes I really don't mean it. Sometimes I write it down, but I say, look, not your das, बट लिखना पड़ता है, बट बाकी सबका मैं दास हूँ, नॉट योर दास। दैट डजंट वर्क एज वेल, भगवान की किताब में वो भी नहीं काम करता है। दास मतलब एवरीबडी इज दास, नो नो बडी इज एक्सेप्शन, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर पहली चीज तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि डू आई एक्चुअली बिलीव दैट आई एम दास, ठीक है। एक अवेयरनेस वो आ जाएगी, देन नेक्स्ट स्टेज आएगा कि व्हाट डू आई डू अबाउट इट, ठीक है। एक तो कहते हैं ना कि 4 आर होता है, सबसे पहला होता है रिकॉग्निशन, ठीक है। 4 आवर्स में से फर्स्ट होता है रिकॉग्निशन, आपको समझ में आ जाए कि रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरे में प्रॉब्लम है, आई से दास बट आई एम एक्चुअली डोंट फील लाइक दास ऑफ अदर पीपल। सेकंड होता है रिमोर्स, आई रियली डोंट लाइक दिस फीलिंग, आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव। ये जरूरी है। अगर सिर्फ आपको रिकॉग्निशन है लेकिन कोई रिमोर्स नहीं है, देन इट डजंट मीन एनीथिंग। ठीक है ना यार, नहीं हूँ दास तो नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है रिमोर्स नहीं है। लेकिन अब सेकंड स्टेज आ गई, रिमोर्स भी आ गया। देन द थर्ड वन आता है रेक्टिफिकेशन, व्हाट डू आई डू टू फील। देन व्हाट डू यू डू इज इंक्रीज योर साधना, पुट योर सेल्फ इन अ लिटिल बिट ऑफ मोर डिस्कम्फर्ट। इफ यू आर, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वट एवर साधना यू डूइंग, यू डू इंक्रीज अ लिटिल बिट। अगर आप अपनी साधना में कंफर्टेबल हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रोइंग, सो यू हैव टू पुट समथिंग एल्स टू मेक यू लिटिल बिट अनकंफर्टेबल, मतलब थोड़ा सा पिंच लगना चाहिए। एंड देन वंस दैट हैपन, देन द लास्ट आर विल कम विच इज रीयूनियन। सो डोंट गिव अप नेहा माता जी, आई थिंक दैट रिकग्निशन जो आपने बोला है, दैट इज ए की थिंग। उसके बाद देन यू प्रे टू द लॉर्ड, एंड always be open to learn from others, and slowly and gradually we will have, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, by the time I die I should have that feeling of दास दास अनुदास। अगर हम लोग वो कर सकें, then our life is successful. राइट प्रभु, पर डेथ भी श्योर नहीं है ना, कभी भी आ सकती है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को क्या, दैट्स व्हाई वी हैव टू मोमेंट बाय मोमेंट वी शुड इंक्रीज, वी मोमेंट बाय मोमेंट वी शुड प्रे कि भगवान, आई हैव टू improve, आई नीड टू improve, and every day you increase your sadhana, or you talk to people, you always talk to people who actually believe, like मेरे साथ क्या है, there is नंदुलाल प्रभु एंड जयदेव गौर सेवक प्रभु, ये दो दो यहीं रहते हैं, पास पास में ही रहते हैं मेरे। मैं इन लोगों के साथ बहुत बार टेंपल जाता हूँ, और मैं कई बार इन लोगों के साथ डील करता हूँ, तो जब मैं इनके साथ होता हूँ, आई फील जेन्युइनली फील दास 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 अनुदास, क्योंकि ये लोग ऐसा फील करते हैं। तो फाइंड आउट सम ऑफ दोज पीपल, ट्राई एंड हैव एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल। आप लोग आस पास में जो डिवोटीज रहते हो, मीट ईच अदर, इंस्पायर ईच अदर, एंड दैट विल रियली हेल्प, है ना। दैट इज हेल्पिंग मी माता जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एनीवन एल्स हैज एनीथिंग दे वांट टू प्रभु, शेयर? प्रभु यस, एक और क्वेश्चन था। पूछिए कई पूछिए बार माता जी। हम लोग ये बोलते हैं ना, टेक रिस्क फॉर कृष्णा,
हम्म। तो प्रभु इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, टेक रिस्क फॉर कृष्णा इसका ऑन? मतलब ये माता जी, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक्चुअली मतलब इसका यही है। हमारे साथ क्या होता है माता जी कि नहीं, आपका नहीं, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट पता क्या है? एंड इट विल बी वेरी फनी फॉर यू गाइस टू नो दिस। मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्कम्फर्ट है सुबह उठना, है ना। आई एम नॉट ए वो मॉर्निंग सबके लिए पर्सन, है प्रभु। है ना। लेकिन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरी वाइफ ने मुझे बोल रखा है कि शी डज नॉट वांट टू सी बीट बैग इन माय हैंड while I am with them, because this is my time with my family, है ना। So I need to I need to make sure that I have to finish it. So that is discomfort for me, but that discomfort is helping me to grow in bhakti. So when they say take risk for Krishna, that doesn't mean take risk for from your family or all anything like. Take risk matlab you keep improving yourself and keep putting yourself in a little bit more क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। क्यों? सो दैट यू कैन ग्रो। क्योंकि किसी भी व्हेन यू आर कंफर्टेबल यू कैन नॉट ग्रो मटीरियली फिजिकली। आप देखो बच्चों के दांत निकलते हैं, दर्द होता है उनको, चुभना चुभन होती है, बिकॉज एवरी ग्रोथ हैव सम डिस्कम्फर्ट। जब बच्चे बड़े होते हैं बोन्स में पेन होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज द बोन्स आर ग्रोइंग। सो एवरी ग्रोथ कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। जो पतंगा होता है उसके कोकून के अंदर होता है, व्हेन इट बिकम्स अ बटरफ्लाई इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट दैट पेन, व्हाट इज दैट पेन? दैट इज ग्रोथ। अगर वो पेन, अगर हम उसका कोकून काट देंगे तो दैट moth will die. It will never become butterfly, it will die, because वो जो स्ट्रेंथ उसकी बनती है वो cocoon को तोड़ने में बनती है, तभी वो इट कैन फ्लाई लाइक ए बटरफ्लाई इजीली, है ना। तो हमारी लाइफ में अगर सब चीज बहुत कंफर्टेबल चल रही है, दैट मीन्स वी आर इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इट्स अ मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन लाइफ इज एवरीथिंग इज रनिंग वेरी स्मूथली। दैट मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड वो वाला रिस्क की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वी नीड टू पुट आवर सेल्फ इन ए पोजिशन वेयर अगर सब चीज कंफर्टेबल चल रही है, इसका मतलब मेरी साधना वो नहीं है, इनफ नहीं है। वी आई नीड टू इंक्रीज इंप्रूव और डू समथिंग इन इट, सो दैट थोड़ा सा पिंच हो एवरी डे। यू शुड हैव ए लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी अबाउट, यार मेरे पास टाइम कम है, साधना ज्यादा है मेरी, हाउ डू आई मैनेज इट। अगर आप अगर आप पूरे दिन में ना, आपकी नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं पूरे दिन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 16 राउंड करने हैं, तो क्या बड़ी बात है यार। मैं 12 14 घंटे में से 2 घंटे चैंटिंग कर ली, बाकी मक्खियां मार रहे हैं, डजेंट रियली मैटर, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 1.5 घंटा है और मेरे को 2 घंटे चैंटिंग करनी है, then I will have that stress. Oh my goodness, I need to do it. And that stress, that anxiety that we take for Krishna will take us back to Godhead. है ना। And that anxiety can only happen if अगर हमारी साधना हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर हमारी साधना हमारी कंफर्ट जोन के अंदर है, then you're not growing in bhakti at all. There is no growth without pain. So that's the way I look at it. I उसमें hope रस that भी makes नहीं sense. आता प्रभु जी, व्हेन यू सफर एंड अचीव नो, तो वो Yes. एंजॉय भी ज्यादा कर सकते हैं। That is correct. That is absolutely correct. And that's why विप्रलंबा भाव जो होता है ना, जिसमें भगवान से बिछुड़ के ने में जो जो उनको भाव मिलता है, विप्रलंब भाव, इट इज ग्रेटर देन व्हेन दे मीट कृष्णा, है ना। राइट प्रभु, थैंक यू, ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। एनीवन एल्स हैज एनीथिंग? अरे ललित प्रभु थे, गायब हो गए। अच्छा सॉरी कोई प्रभु, मैं बहुत लेट हो गई आज, पता ही नहीं लगा मुझे कोई टाइम का। बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं, कोई बात एकदम अभी याद आया मुझे, देखा तो बहुत देर थी पर। नहीं। सॉरी नहीं कोई सॉरी। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। अरे ये रे ललित प्रभु दिख गए। नहीं प्रभु जी, मैं ये तो था, मैं बस ऑफिस नहीं से नहीं आके एकदम मैं सुन ही नहीं, रहा था। नहीं मेरे को लगा कि ना मेरे स्क्रीन में से कभी कभी गायब हो जाती है ना, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन आता है मेरी स्क्रीन में, तो मेरे को लगा शायद वो हो नहीं, गया। एनीवे। ऑल गुड। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु।